Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Uh, Dear Inspector Inland Revenue aspirants, please. Today we are going to start crash crash course. लिटरल मीनिंग से पता है जी क्रैश क्या होता है और आपने क्या आपका एक्शन होना चाहिए व्हेन थिंग्स आर गोइंग टू बी क्रैश्ड. तो in the context of preparation of inspector inland revenue exams, we are going to start the crash preparation. How we can overcome or how we can compete with other candidates to pass the exam of inspector inland revenue. Uh, I merged uh, the previous batch with crash batch. Batch number 5, almost 4 or 5 classes are conducted, and almost 5 to 6 sections are covered by the batch number 5. So, batch number 5 will do its preparation with crash batch. और बैच नंबर 2, बैच नंबर 3 एंड बैच नंबर 4 जो पार्टिसिपेंट्स वहाँ बैठे हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उनके बैच ओवर है. और साहब आप लोगों के बैच जो है वो एक्सपायर हो गए हैं तो इसको रिन्यू करवाएं. ठीक है जी. चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दोज स्टूडेंट्स हु जॉइंड टुडे. और डेफिनेटली इट्स देयर फर्स्ट क्लास. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस. Income tax ordinance, one of the major uh, topic which you people will face in the IIR exam. Almost approximate, we should say that approximate 25% or 30%, in between 25 to 30, uh, will be from Income Tax Ordinance 2001, and equally from Sale Tax Act, then Fiscal Policy and FED, and then FDR Act and reforms. So that will be the composition of your exam. Plus 2%, minus 2% गुंजाइश है. बट जैसे आप पूछ रहे हैं कि सर व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ आवर एग्जाम, व्हाट विल द कंपोजिशन ऑफ आवर पेपर. तो कंपोजिशन इज वेरी क्लियर. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल टैक्स एक्ट. I always categorize Sale Tax Act at number 1. You people are saying that, sir, please let us know how we should prepare now. So daily the titles of every section, each section of income tax ordinance is important. Sections which are in the syllabus and sections of Sale Tax Act equally important. Then chapters title of Sale Tax Act equally important. Then titles of schedules of Sale Tax Act are equally important. From today onward, before going to bed or before closing your eye on daily basis, you must repeat the titles of Sale Tax Act and Income Tax Ordinance titles. Definitely by doing this, I believe you are going to get 15 marks at least. So why you people are not doing this? You must practice. Only practice, practice, and practice. You can achieve perfection by doing the practice. So it's a tablet. Second, I think Islan was asking the question, sir, what should I do now? Second, you must practice a paper on preposition and a paper on sentence structure. Daily a paper till exam you should practice. How you can do the practice I have illustrated in the class. I believe you attended that class. Yes. So what should you do? You should attempt a paper daily. Evaluate yourself. Are you getting the desired result or not? If not, go and do the practice. Automatically weak areas will be highlighted with you.
So work on your weak areas. I think it is sufficient for today. And as we go closer to the exam, inshallah, we will again do the brainstorming and come up with more ideas how you can pass the exam. So let's start the income tax ordinance. Income tax ordinance 2001. Up to here, I believe. Yes. Section 14. Up to here, I believe. Okay. ITO 2001. G, our syllabus starts from section 9 till section 65. So today we are going to discuss section number 14. The students who join today will get the previous lectures. Inshallah, I will provide them. But today we are going to discuss what? Section 14. 14. Section 14 deals with what? Employee share schemes. Employee share Schemes. schemes. अच्छा जी, it is a constraint. What is the constraint? May I, let's come into our mother language. Yeah, mother to Punjabi, but come into national language. And all of you know there are how many heads of income? There are 5 heads of income. The first head is Income from sales. salary. Second head is Property. third head is Business. fourth head is कैपिटल गेन एंड फिफ्थ हेड इज Other जो इन चारों में ना आए वो डाल दो किसमें? Other sources. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. तो हम क्या कर रहे हैं अब? सैलरी Salary. इनकम. सैलरी इनकम में एक चीज है सेक्शन 14 और सेक्शन 14 डील करता है एम्प्लॉय की शेयर स्कीम को. क्या समझ आती है एम्प्लॉय की शेयर स्कीम? कारोबार में हिस्सेदार बनना. एग्जैक्टली कि जो एम्प्लॉय है वो हिस्सेदार बनना जा रहा है किसके थ्रू? एक स्कीम के तहत. वो स्कीम क्या होती है? शेयर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो एम्प्लॉय है, मुलाजम है, उसको कारोबार में शामिल करता है जो कि मेजर स्टेक होल्डर है. ओनर वो कहता है कि इस तरह करते हैं कि एम्प्लॉय को भी जिस जो जिस काम के लिए उसको रखा गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए कि वो हमें काम करके दे, अगर हम इसका काम है सैलरी कमाना और मेरा एक एम्प्लॉय का काम है सैलरी अर्न करना, और जो मालिक है, जो ओनर है, वो क्या चाहता है? मुनाफा. वो कहते हैं कि मैं एक नया कॉन्सेप्ट ना निकालूं, गोल कंग्रुएंस. व्हाट इज दिस? कि जो कारोबार का मकसद है, कारोबार का मकसद क्या है? प्रॉफिट अर्निंग. प्रॉफिट अर्निंग. और अगर कारोबार के मकसद को एम्प्लॉय के मकसद के साथ अलाइन कर दिया जाए, दोनों की एक ही डायरेक्शन कर दी जाए, तो रिजल्ट ज्यादा बेहतर आएगा कि अगर दोनों की मुख्तलिफ डायरेक्शन हो, ठीक है, तो वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा. तो वो एक इंडेवर किया जा रहा है, एक कोशिश की जा रही है कि सिमत जो है दोनों की एक तरफ हो जाए और एम्प्लॉय मालिक बनकर सोचे और उस तरह कोशिश करे कि कारोबार आगे की तरफ जाए. तो इसलिए एम्प्लॉय को शेयर दिए जाते हैं कि तुम शेयर लो, शेयर लेने से तुम भी मालिक बन जाओगे और तुम्हारा भी दिल करेगा कि कंपनी ऊपर की तरफ जाए. ठीक है, ये है स्कीम जो है एम्प्लॉय शेयर स्कीम. होता कैसे है? होता ये है कि एक एग्रीमेंट होता है. अगर आपको कहा जाए कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम क्या है तो आप कहेंगे इट इज एन एग्रीमेंट. रिजवान शाह साहब फ्रॉम कोयटा, व्हाट इज
एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट है। इस एग्रीमेंट से क्या होता है? एग्रीमेंट में जो कंपनी होती है जिसने शेयर देने होते हैं वो एग्री करती है क्या, कि मैं फलां प्राइस के ऊपर, फलां प्राइस के ऊपर तुम्हें एम्प्लॉय को शेयर बेच दूंगी। क्या होगा? फलां प्राइस के ऊपर शेयर बेच दूंगी। तो एम्प्लॉय जो है इस कहता है कि ठीक है, एग्रीमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है जी, और वो फलां प्राइस के ऊपर खरीद लेता है या नहीं खरीदता। अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं कि जब ये एम्प्लॉय शेयर स्कीम, एम्प्लॉय ने शेयर इशू करने, एम्प्लॉयर ने शेयर इशू करने और एम्प्लॉय ने खरीदने हैं ना, तो कुछ एक प्रोसेस चलेगा। वो प्रोसेस क्या होगा? नंबर 1, जो कंपनी है ना, जो कंपनी है, डियर स्टूडेंट्स जो आज ज्वाइन किए हैं, मैं उनको बता रहा हूं कि हम एक हेड है सैलरी का, उसको पढ़ रहे हैं। और एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को शेयर देता है तो सैलरी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा वो हम निकालेंगे आज। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आप परेशान ना हो जाएं। वो ये है कि हम हेड पढ़ रहे हैं सैलरी। सैलरी में आप जब एक नौकर होता है, एम्प्लॉय होता है, उसे तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह के अलावा उसे कुछ और चीजें भी मिलती हैं जिसे मराद कहा जाता है। मराद के अलावा एक शेयर स्कीम भी होती है, तो शेयर स्कीम से कुछ फायदा मिलता है। तो जो फायदा मिलेगा उसको सैलरी के अंदर कैसे ट्रीटमेंट करना है वो आज हमने फैसला करना है। हम कुछ इसको समझने जा रहे हैं कि ये हम जो पढ़ रहे हैं इसका मकसद क्या है, वो मैं बयान करना चाह रहा हूँ कि कहीं ये ना हो गया ये हो क्या रहा है। तो आपको मैं इसकी बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि हम करने क्या लगे। कि एम्प्लॉय को शेयर मिलेगा तो वो शेयर का फायदा किस तरह सैलरी का हिस्सा बनेगा वो मैंने आज आपको बता दें। चलो आज कंपनी है, कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, तो शेयर इशू करने से पहले वो राइट या ऑप्शन इशू करती है। राइट या ऑप्शन किसको? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को इशू करती है कि मैं तुम्हें 1-1 रुपए का राइट देता हूँ। लेट्स सपोज, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ 1 रुपी के फलां डेट को आप फलां कीमत के ऊपर शेयर खरीद लेना। जिसके पास राइट होगा वो आके खरीद ले, जिसके पास नहीं होगा उसे नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय को दिया जा रहा है राइट पब्लिक ऑप्शन। एम्प्लॉय कहता है ओके, एग्री कर जाता है कि मैं फलां कीमत पे राइट ले लूंगा। ठीक है जी, तो राइट ऑप्शन दिया किसने इशू किया? कंपनी ने। ले किसने लिखा? एम्प्लॉय ने। एम्प्लॉय ने राइट या ऑप्शन बाय कर लिया। बाय कर लिया, राइट या ऑप्शन बाय किया। जब ड्यू डेट पहुंची तो एम्प्लॉय ने जो शेयर की कीमत कही थी, एम्प्लॉयर ने उसके ऊपर जाके कहा ये पैसे लो और शेयर दे दो। तो एम्प्लॉय ने शेयर की कीमत दे दी और एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉयर मीन कंपनी, उसने शेयर इशू कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है जी, उसने पहले राइट और ऑप्शन दिया कि क्या तुम खरीदना चाहते हो, आपने शो कर दी थी, अपनी कॉन्सेंट शो कर दी, 1-1 रुपए का खरीद लिया। एम्प्लॉय राइट ऑप्शन बाय कर लिया। एम्प्लॉय ने फिर शेयर प्राइस जो कही थी उसके ऊपर प्राइस जमा करवा दी। एम्प्लॉय ने शेयर इशू कर दिया। यही तो सारी स्कीम है। अब यहाँ पे सैलरी के अंदर जाने वाला क्या ताल्लुक बनता है? बनता ये है कि शेयर की कुछ कीमत होती है, शेयर की कुछ कीमत होती है। शेयर की कीमतें कुछ इस तरह से होती हैं। एक होती है मार्केट प्राइस, होती है जी,
अब मार्केट प्राइस को कोई बता सकता है कि मार्केट प्राइस क्या होती है? जो स्टॉक एक्सचेंज के ओपन मार्केट में डिक्लेयर्ड है। जितने का शेयर स्टॉक मार्केट में जाकर बिक रहा होता है वो उस दिन की मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होती है। अच्छा, एक होती है फेस वैल्यू, FV, फेस वैल्यू। जो शेयर होता है उसके मुंह के ऊपर, उसके फेस के ऊपर शेयर की कीमत लिखी होती है, उसको क्या कहा जाता है? फेस वैल्यू। पाकिस्तान में जनरली फेस वैल्यू क्या होती है? 10 रुपए। तो आम तौर पर फेस वैल्यू क्या होती है? 10 रुपए। मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपके बिजनेस की पोजीशन के मुताबिक। अभी बैंक का हो सकता है फेस वैल्यू तो 10 ही हो, जनरली यही होती है। वेयर एज मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज पे चले जाओ तो वो कितने का आजकल चल रहा है? कोई है शेयर वाला? हो सकता है वो 120, 130, 140 का चल रहा हो। वेयर एज है तो फेस वैल्यू ये, लेकिन चल कितने का रहा है? 130 का। और यहाँ पे एग्रीमेंट के थ्रू एम्प्लॉयर कितने का दे रहा है? आमतौर पर एक्सरसाइज प्राइस जो होती है जिसके ऊपर एम्प्लॉय को शेयर मिल रहा होता है वो मार्केट वैल्यू से लेस होता है। मार्केट वैल्यू से क्या होता है? लेस होता है। जिस दिन आपको शेयर मिला, यहाँ पे है जी दिन, है दिन जी, जिस दिन आपको शेयर मिला उस दिन मार्केट वैल्यू क्या थी, आपने कितना जमा करवाया, दोनों का जो फर्क निकलेगा सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये है सारी स्कीम। ये सारी कहानी जो करने का की है वो यही समझाने के लिए कि सैलरी में एम्प्लॉय शेयर स्कीम की वजह से जो शेयर मिलता है मार्केट में कीमत ज्यादा होती है, तुम्हें कीमत कम पे करना पड़ रही है तो तुम्हें फायदा नहीं हो रहा, एम्प्लॉय साहब आपको फायदा हो रहा है। और अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट पहुंचता है तो वो सैलरी का हिस्सा नहीं होता। यही तो हमने साबित करना है। जरूरी नहीं फेस वैल्यू पे कंपनी सेल करे। यार फेस वैल्यू पे तो सेल कर ही नहीं रहे हम, ये तो मैं बता रहा हूँ, ये तो वैसे बता रहे हैं कि नॉर्मली फेस वैल्यू ये होती है। कंपनी ये जरूर होता है कि देखो मार्केट में अगर 130 रुपए है तो क्या कंपनी अपने एम्प्लॉय को इंड्यूस करने के लिए कि अच्छे काम करो, इसको फायदा देने के लिए 140 का बेचेगी? 140 का बेचेगी कोई एम्प्लॉय पागल है वो लेगा? कम का बेचेगी। और जब कम का बेचेगी, एक्सरसाइज प्राइस है, फिर ही तो फायदा होगा। कि मार्केट में 100 रुपए की चीज मिल रही हो, कंपनी कहे मैं अपने एम्प्लॉयज को फायदा देती हूँ, मैं इनको 70 रुपए की दे देती हूँ, एम्प्लॉय फिर ही राइट खरीदेगा ना, फिर ही ऑप्शन खरीदेगा। तो जो अभी बेनिफिट है उसका मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ये है जी, हम सपोज कर लेते हैं कि अब मार्केट आज क्या डेट है जी? आज 17। यार हमें तो याद होना चाहिए आज हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। तो बड़े बहुत से जो 4 महीने से सोए हुए थे वो भी जाग के आ गए। साथ ही हम भी कर सकते हैं, आज जो आप भी कर लो। किसी को ना नहीं की, आपको भी नहीं की, तो सब आपको भी नहीं की, ठीक है ना जी। बाकी जो सुन रहे हैं, जो ये ब्रॉडकास्टिंग हो रही है उनको भी नहीं की, वो भी फी पे करें, वो भी आ जाए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो हमने हाफ कहा हुआ है। और भी कुछ बात याद करवानी थी यार आप लोगों ने, तो फी के बारे में कोई नहीं है तो साहब 17/1/2022 17/1/2022 को एम्प्लॉय शेयर स्कीम के थ्रू एम्प्लॉय का नाम राव साहब रखते हैं। राव साहब ने क्या किया, 1000 शेयर उठा लिए, 7 गोल करने के लिए कहते हैं 50 रुपीज, ठीक है जी। 50 रुपीज के इन्होंने 1000 शेयर उठा लिए। राव साहब को कितने पैसे देना पड़े? हाँ 50,000। 1 सिफर ये और 3 सिफर ये और 1, 50,000 राव साहब को देना पड़े। राव साहब को जब ये
50 1000 शेयर मिल गए ना, इन्होंने कहा कि अगर यार ये अगर मैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम के थ्रू ना लेता और मैं यही शेयर 1000 खरीदने के लिए स्टॉक मार्केट अलहमरा के बैक साइड पे जो है वहां चला जाता, फिर मुझे कितने के मिलते। तो इन्होंने कहा जी कि आज मार्केट पे इसका रेट 70 रुपए था, ठीक है जी। तो अगर मैं वहां से लेने जाता तो मुझे तो ये मिलने थे 70,000 के, मुझे कितने के मिल गए हैं? 50,000 के। राव साहब को फायदा कितना हो रहा है? 20,000। तो जनाब ये 20,000 टैक्स वाले नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने कहा फायदा उससे ले रहे हो तो टैक्स के लिए तो पेश करो। तो आप अपनी सैलरी के अंदर क्या शामिल करेंगे? 20,000 एम्प्लॉय शेयर स्कीम की वजह से मिला, इस वजह से बाकी सैलरी जो भी साल की बन रही है उसके अंदर आप क्या ऐड कर जाएंगे? इसको भी टैक्स के लिए शामिल कर देंगे। टैक्सेबल सैलरी आपकी क्या हो जाएगी? अब एक और बात करते हैं, और वो बात ये है कि कंपनी ने कहा यार हमारा मकसद तो ये है कि राव साहब को शेयर दे दें कि ये शेयर अपने पास रखें, गोल कंकरेंस हो, दोनों की कीमत एक हो और ये दिल लगा के काम करें। 5 बजे छुट्टी होती है, ये 7 बजे तक बैठे हो। जब मैं नया नया एफबीआर में गया तो हमें आदत पड़ी हुई थी चीज़ों को ओन करने की कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करता हूँ। तो हमने जाके एफबीआर को ओन कर लिया। जब ओन किया तो एफबीआर को 5 बजे ताला लग जाएगा ना, हम लोग 7:15 बजे तक बैठे हुए काम कर रहे हैं। वो हफ्ता के 1.5 हफ्ता तो देखती रही जो मैडम मेरी थी डिप्टी कमिश्नर, ये चल रहा है। जो मैडम देख रही थी ये देखती रही, फिर उन्होंने एक हफ्ते के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, जाहिद साहब आप इतना लेट ना बैठा करें। मैंने कहा मैडम वो क्यों? ये वो अदारे नहीं है जिस अदारों से आप आए हैं, यहाँ पे लेट बैठने के मकसद कुछ और होते हैं। तो वो तो मैंने देखा वो मकसद है नहीं, तो इसलिए आप टाइम पे छुट्टी कर जाया करें। तो फिर मैंने कहा हाँ ये बात तो बड़ी काम भी किया इन्होंने। तो फिर वो जो है ना मैडम उधर से निकलती थी, हम इधर से निकल जाते थे, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पे हुई कि राव साहब को तो दिया जा रहा है कि राव साहब काम अच्छा करे, गोल कॉन्फिडेंस हो जाए, ठीक है। तो राव साहब उन्होंने साथ में कंडीशन लगा दी। कंडीशन का तो पता है ना कि आप साथ में लाइक उन्होंने शेयर दिया 17/1 को, उन्होंने कहा राव साहब कम से कम 3 साल आप सेल नहीं कर सकते, 3 इयर्स जो हम आपको एम्प्लॉय शेयर स्कीम की वजह से शेयर दे रहे हैं, आप 3 साल बेच नहीं सकते इसे, ठीक है। अब बताओ राव साहब की सैलरी में जो 20,000 का फायदा है वो ऐड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अगर होगा तो कब होगा? डिस्पोज ऑफ करने के बाद होगा। एग्जैक्टली। तो बात ये है कि जब उनके वो फ्री हो जाएंगे, जब कंडीशन रिमूव हो जाएगी, उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी, जो मार्केट प्राइस होगी, मिसाल के तौर पर 17/1 3 साल ऐड कर दो, ठीक है जी। तो 17/1/2025 17/1/2025 को राव साहब स्टॉक मार्केट जाएंगे या अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां से शेयर की वैल्यू चेक करेंगे और वैल्यू चेक करने के बाद देखेंगे कि जनाब अब क्या प्राइस है। जो उस दिन प्राइस होगी वो इसको यहाँ पे लिखेंगे और जितने आपने दिए होंगे उन दोनों का फर्क निकालेंगे, जो भी फर्क होगा वो सैलरी का हो जाएगा। चूना लग गया, हाँ चूना लग गया सर कम। अगर कम होगी तो सैलरी में कुछ नहीं आएगा। अगर इमरान खान की गवर्नमेंट चलती रही तो डाउन ही आएगा ना। तो आपको ये फायदा हो जाएगा, सैलरी का कुछ नहीं बनेगा, अलबत्ता जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी वो जाती रहेगी, ठीक है जी। अच्छा मैं बिल्कुल यहाँ हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि इमरान खान काम ठीक नहीं कर रहे, लेकिन फाइनेंशियल रिजल्ट नहीं आ रहे, ठीक है, जो फिगर्स हैं वो ठीक नहीं है। माफिया उसी कहता है, हाँ माफिया की बात करता है, तो वो माफिया ने उसको कंट्रोल किया है। अच्छा, when he came into the government, at that time I was inspector FBR. So literally speaking, the whole department was scared.
The corrupt people were very worried that we don't know what he is going to do with us. इसका डर था लोगों पे, लोगों ने काम गलत करना छोड़ दिया था और इसकी वजह से काम होना ही छूट गया था, कि कोई काम ही नहीं करता था, क्योंकि जो काम होते हैं वो सारे गलती हैं। तो ना कोई आर्डर होना, ना कोई असेसमेंट होनी, कुछ भी नहीं, ना कोई गवर्नमेंट को पैसे आने, क्योंकि एम्प्लॉय की जेब में आएगा साथ कुछ गवर्नमेंट में भी आएगा। जब एम्प्लॉय की जेब में नहीं आ रहा था तो गवर्नमेंट को भी। हाँ, और बाकी डरे हुए थे कि यार अगर हमने कुछ कर दिया, सही भी किया, तो पता नहीं ये सही को भी नैब में ले जाए। तो ये ब्यूरोक्रेट्स की थिंकिंग थी एट दैट टाइम, क्योंकि मैं उनके साथ ही बैठता था। सही। अच्छा, तो आप सब इसको कंक्लूड करते हैं। आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ मैंने मिस कर दी, वो अभी क्लिक हो गया कि देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि राइट और ऑप्शन आपने 1 रुपए का लिया होगा। अगर आपने 1,00,000 शेयर 1,000 शेयर खरीदना था तो आपने राइट और ऑप्शन परचेज करने के पैसे नहीं दिए है ना। तो 50,000 ये प्लस राइट और ऑप्शन परचेज करने के पैसे 1,000 वो, तो 70,000 माइनस 51,000 होगा, और बाकी जो 19,000 आएगा वो सैलरी का हिस्सा बनेगा। तो बात ये बनी प्रिंसिपली कि जो कंसिडरेशन इसे कहते हैं कि मिसाल ये जो फेयर मार्केट वैल्यू अब है, और जो आपने कंसिडरेशन पे की थी इन शेयर को खरीदने के लिए, कंसिडरेशन में आपने जितने पैसे दिए थे ये शेयर को अपने नाम पे लेने के लिए, आपने जी राइट के पैसे भी दिए थे और आपने शेयर के पैसे भी दिए थे। इन दोनों को इकट्ठा करके फिर मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करके जो डिफरेंशियल होगा वो सैलरी का हिस्सा बनेगा। लेकिन अगर कंडीशन लगी हुई है तो जब तक शेयर फ्री नहीं होता, कंडीशन रिमूव नहीं होती, तब तक सैलरी में कुछ भी नहीं ऐड होगा। अच्छा, कुछ चीजें मैं देख लेता हूँ, जिस तरह ये रह गया था कोई और चीज ना रहती हो। और राइट ऑप्शन सर अगर सेल कर देते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया, वेरी गुड। हाँ, तो अगर अभी पेपर में वो पता है एमसीक्यू क्या कह रहे हैं, इन्होंने अच्छी सही साइड पे मुझे ले गए। अच्छा, जब राइट और ऑप्शन मिला, राइट और ऑप्शन मिला कि तुम फलां कीमत के ऊपर तुम 50 रुपए का शेयर खरीद सकते हो, इसका हम तुम्हें राइट ऑब्लिक ऑप्शन दे रहे हैं। तो जब आपको राइट ऑब्लिक ऑप्शन मिला, उस वक्त कोई टैक्सेबल इनकम आपकी सैलरी में शामिल नहीं होगी। ठीक। दूसरा, राइट ऑब्लिक ऑप्शन मिला, आपने उसको बेच दिया। लाइक आपको राइट और ऑप्शन मिला 1 रुपए का, आपने मार्केट में फेंक दिया 5 रुपए का, आपको फायदा हुआ या ना हुआ? हुआ। किस वजह से हुआ? बिकॉज यू हैव एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर से कोई भी बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉय को, तो उसका भी सोचना पड़ता है कि यार इसका टैक्स बनता है या नहीं बनता। तो फिर 4 रुपए का फायदा मिला। डिस्पोजल इसे कहते हैं, डिस्पोजल। आपने क्या कर दिया? राइट ऑब्लिक ऑप्शन का डिस्पोजल कर दिया। तो डिस्पोजल करके आपको 4 रुपए मिले एक शेयर के पीछे, 1,000 के पीछे फिर 1,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 4,000 मिल गया, 4,000 मिल गया। 4,000 सैलरी का क्या बनेगा? हिस्सा बन जाएगा। इससे आपकी टैक्सेबल सैलरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। चलो जी, और भी कुछ जेन में आ रहा है, बता दो। मैंने और ये उसी दिन से सर काउंट होना शुरू हो जाएगा जिस दिन आपने बेचा है। नहीं, डेफिनेटली उसी दिन वो देखो वो दिन जो है किसी ना किसी टैक्स पीरियड में आ रहा होगा। जिस टैक्स पीरियड में आ रहा होगा उस साल की टैक्स की सैलरी में हिस्सा बन जाएगा वो जाके। सर ये टैक्स क्रेडिट अभी डिस्पोजल ऑफ शेयर टू 24 मंथ्स लिखा हुआ कौन से वाला? है। डिस्पोजल ऑफ शेयर आगे जाने दो मुझे ना, एक दफा उस सेक्शन पे आ जाओ। टैक्स क्रेडिट के साथ लिखा हुआ है। अरे ये यार ये और है, अभी आगे चलने दो ना। हाँ, कि ये अभी हमने राइट मिला, उस वक्त टैक्सेबल है या नहीं है, पेपर में आ गया, आपने कहना है नो टैक्सेबल। राइट मिला, आपने उसको डिस्पोज कर दिया। अब बताओ कोई टैक्सेबल है या नहीं है? जिस सैलरी का हिस्सा बनेगा, जितने का आपने लिया, जितने का बेचा, उसका फर्क सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। फिर आपने राइट ऑब्लिक ऑप्शन को एक्सरसाइज करके आपने शेयर खरीद लिया। तो शेयर खरीदते हुए जिस दिन खरीदा, जो आपने पे किया प्लस जो आपने राइट और ऑप्शन को लेते हुए पे किया था, दोनों को इकट्ठा किया जाएगा। और जिस दिन आपको ये मिले शेयर, उस दिन मार्केट वैल्यू क्या है?
फेयर मार्केट वैल्यू क्या है शेयर की, स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर कितने का बिक रहा है, दोनों का फर्क निकाल के उतना क्या बन जाएगा, सैलरी का हिस्सा। जिस दिन आपको शेयर मिला उस दिन साथ में कंडीशन लगी हुई थी कि आप आगे बेच नहीं सकते, तो आपकी सैलरी में कुछ भी शामिल नहीं होगा। अब आगे बढ़ो। अच्छा देखो, अब उनकी बात पे आ जाते हैं। अब बात ये है कि आपने बेचा तो नहीं, जिस दिन आपको शेयर मिला उस दिन आपने हिसाब कर लिया कि इतना मेरा सैलरी का हिस्सा बन रहा है। तो जब कभी आपने बेचा होगा, जब कभी भी आपने बेचा होगा, उस वक्त अगर आपको कैपिटल गेन होगा तो वो कैपिटल गेन कैसे मालूम करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, जो टैक्स क्रेडिट का आप बात कर रहे हैं मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। वो इस तरह शायद तो अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपको इलस्ट्रेट करता हूँ। यहाँ पे भी टूटा तो नहीं हो रही, ठीक है, चीज़ नॉर्मल ओवर देयर। आई होप कि जो नए स्टूडेंट हैं वो भी ट्यून हो गए होंगे इसके साथ अभी, क्योंकि आपने डाउन जाके इसको डिस्कस किया है तो, और इंडिपेंडेंट कर दिया दूसरी चीज़ों से, डिपेंडेंट नहीं रहा ये, तो इसलिए उनको भी समझ आ रही होगी। अच्छा, अगर आपकी सराउंडिंग में कोई डिजर्विंग स्टूडेंट है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं, जो इधर क्लास में है या इवन जो उस पे है। अगर कोई डिजर्विंग स्टूडेंट है जिसको आप समझते हैं कि बाकी वो पे नहीं कर सकता, तो वो डायरेक्ट मेरे साथ रब्ता कर लें। अच्छा जी, हाँ देखो, एक होता है कैपिटल गेन, लेकिन जो पे कर सकते हैं राव, जो पे कर सकते हैं वो पे करें। अल्लाह ना करे भाई, अल्लाह ताला किसी को डिजर्विंग बनाए, ये भी बड़ी बात है। अच्छा, अब देखो यार, कैपिटल गेन बनाना है और जो आपने, अब देखो जैसे हमने कहा था कि जिस दिन शेयर मिला उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू हमारे मुताबिक शेयर की 70 थी। हमने शेयर खरीदने के लिए कास्ट ऑफ शेयर मालूम करते हैं, तो हमने शेयर की क्या के लिए कितना पे किया, 50, 1 रुपया पे किया हमने राइट लेने के लिए, ठीक है जी। तो हमने टोटल पे कर दिया 51, इन दोनों का फर्क कितना आया था, 19। इस 90 को हमने क्या किया था, अपनी सैलरी का, सैलरी के अंदर डाल दिया था जाके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी सैलरी अगर 12 लाख है, 1000 शेयर, 19 रुपया, 1000 पे फायदा, तो 19,000 हमने क्या किया था, अपनी टैक्सेबल सैलरी 12,19,000 कर दी थी और इसके ऊपर टैक्स दे दिया था, दे दिया था, बात बन गई ये वाली। अच्छा, अब यहाँ पे अब देखो, अब हम कैपिटल गेन करने लगे हैं कि वो जिस दिन मिला उसी दिन हिसाब करके हमने 19 के हिसाब से 19,000 बना के अपने टैक्सेबल सैलरी को बढ़ा लिया था। अब लेटर ऑन हमने शेयर को बेच दिया, जिस दिन बेचा उस दिन बिक गया वो जी 80,000 के, इस तरह 80 रुपए का एक शेयर, सही। अब इसमें से मुझे बताओ माइनस क्या क्या कुछ करना है ताकि सही कैपिटल गेन को ढूंढा जा सके। माइनस पता क्या करना है, माइनस करना है जी एक ये और एक ये। आपकी सुई यहाँ पे आके अड़ेगी कि सर इसको क्यों माइनस कर रहे हैं, वो इसलिए माइनस कर रहे हैं मोहतरम, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे हमने टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बना के इसमें टैक्स दे दिया है, तो जिसपे एक दफा ऑलरेडी टैक्स दे दिया है तो फिर क्या इसको हम अब ना डालें उसमें, जनाब इसको डिडक्शन में डालना है, माइनस करना है। तो मुझे एक तो ये माइनस करवाओ क्योंकि ये कास्ट पे की थी, एक ये माइनस करवाओ राइट के लिए पैसे दिए थे,
एक ये माइनस करवाओ, क्योंकि हमने पहले ही इस पे टैक्स दे दिया है, तो इन सबको माइनस कराओ। अब बताओ क्या बच रहा है, तो 10 रुपए। तो अब जब कैपिटल गेन होगा आपने कहना है 10 ज़रबे 1000 शेयर, तो कितने पे टैक्स देना है अभी हमने, कैपिटल गेन करना है हमने, इतना हुआ है। ना कि आप इसको कम करें और कहें जी 19 रुपए कैपिटल गेन हो रहा है और मल्टीप्लाई बाय 10,000, सॉरी 1000, और बन जाएगा 19,000। तो कैपिटल गेन 19,000 नहीं रहेगा, फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपने क्या किया, आपने वही टैक्स जो ऑलरेडी करवा चुके हो उसका टैक्स का बेनिफिट ले लिया। ठीक होगी जी बात, चलो। सर उसने 2 साल लिखा होता है, 2 साल उसमें लिखा होता है, आप 3 साल के 3 साल रख सकते हो। यार जब भी है, जब भी उसने रखा, जब भी कंडीशन डाल दी, कंडीशन तो आप डाल लेते हैं। मैं एम्प्लॉयर, मैं कहता हूँ मेरा शेयर 7 साल नहीं बेचना, ठीक है। आगे जो है ना चीज़ें और गहरी होती जाएंगी, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करना है कोई जो बुक में दिया हुआ है इसको समझने के लिए। सर जैसे हमने अभी शेयर कंपनी से ली है, उसे सेल के लिए प्रेजेंट नहीं किया, तो ये तभी टैक्सेबल हो जाएंगे सैलरी का पार्ट। हाँ, उस टाइम नहीं होगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे शेयर राइट्स को सेल करने के लिए, और जितना नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम के अंदर यही कॉन्सेप्ट है कि यही स्कीम है कि जिस दिन आपको शेयर अलाट हो गए, आपके नाम पे चढ़ गए, उस दिन आपने उसकी मार्केट वैल्यू चेक करनी, देख ली, और जो आपने पे किया उनको अपने नाम पे चढ़वाने के लिए उसको माइनस कर देना है। जो फर्क आएगा वो आपको बेनिफिट मिला है एम्प्लॉयर की तरफ से, वो आपने सैलरी का हिस्सा बना दिया। फिर जब आपने बेचना है तो उसने आपने उसका टैक्स क्रेडिट ले लेना है, और कैसे लेना है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पैसे मिलते हैं टाइम मेंशन है तो फिर तो नहीं सैलरी के सब जब तक 2 साल 3 साल। हाँ, फिर जिस दिन वो टाइम वो कदगन लगा था वो रिमूव हो गया, जिस पर पाकिस्तान पे पाबंदियां लग जाती हैं, तो जब उसमें इस शेयर पे पाबंदी लगी हुई है कि तुम बेच नहीं सकते, तो जिस दिन पाबंदी रिमूव होगी उस दिन जो है वो। अच्छा यहाँ पे एक और बात है, पाबंदी के बावजूद कुछ लोग डिस्पोजल कर जाते हैं, कंडीशन लगी हुई है कि तुम बेच नहीं सकते, लेकिन कुछ कंडीशन पाकिस्तान पे पाबंदियां लगने के बावजूद पाकिस्तान कुछ काम कर जाता है, ठीक है, कि तुमने धमाका नहीं करना, ये नहीं करना, पाबंदियां लगनी है, पर पाकिस्तान ने क्या किया, कर दिया ना। इसी तरह कुछ लोगों पे पाबंदी लगती है कि यू आर नॉट सपोज टू सेल दिस शेयर बिकॉज यू आर गेटिंग दिस शेयर अंडर अ स्कीम, एंड स्कीम इज सेइंग दैट दिस इज कंडीशन दैट यू मस्ट नॉट सेल दिस शेयर फॉर 2 years। वो फिर इंटरनल एडजस्टमेंट कर लेते हैं, भाई को पकड़ा दी, या जब कंडीशन रिमूव होगी ठीक है मैं तुम्हें इतने का बेच देता हूँ, या फिर इस तरह भी डिस्पोजल करके आओ। अगर वो डिस्पोजल कंडीशन के बावजूद भी करने में कामयाब हो गया, तो फिर जिस दिन डिस्पोजल हो गया उसी दिन ही कर लेगा, उसी दिन फिर कैलकुलेशन हो जाएगी। बात समझ आ गई या नहीं आ गई? चलो आगे बढ़ने दो, मुझे एग्जाम्पल करें या रहने दें? रहने देते हैं आगे, क्योंकि ये मैंने एग्जाम्पलीफाई तो कर ही दिया। सर किसी से वजह से या फिर खास कंपनी हो सकती थोड़ा सा ये 80 वाली 80,000 आपने लिखा था ये यार ये 80,000 लिखा था कि आपको 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 80 जो हासिल होगा वो 80,000। 1000 आप कहीं और होंगे ना उस टाइम, 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 80, टोटल पैसा कितना मिला, 80,000, 80,000। वो फेयर मार्केट वैल्यू है जिस दिन बेचना है। मैं तो आपको आम लेमैन की लैंग्वेज में बताता हूँ, कोई भी वो टर्मिनोलॉजीज है उसको हम साइड पे रख देते हैं ताकि सो दैट यू कैन मेक योर अंडरस्टैंडिंग। चलिए सर किसी से खरीद सकते हैं या किसी खास कंपनी से जो हाँ जो एसईसी में रजिस्टर्ड उनके साथ, या वैसे अनरजिस्टर्ड कंपनी से खरीद सकते हैं? यार अभी कैपिटल गेन की क्या ट्रीटमेंट होगी आप उस तरफ ले जाओगे, तो वो मैं कहता हूँ ना ही लेके जाओ, पड़ेंगे ना। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है बता देते हैं। अच्छा इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब ना बैच आप लोगों का क्रैश नहीं है, ठीक है, आप दूसरे बैच के, तो क्रैश वालों को क्रैश करने दें। अच्छा होता ये है कि जो कैपिटल गेन होता है ना यहाँ पे, ये वाला
यही हुआ था, यही हुआ था ना। अब कैपिटल गेन के ऊपर टैक्सेशन कैसे होगी? अगर तो वो शेयर पब्लिक लिस्टेड कंपनी का होगा तो वो सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन दी हुई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के उसके अंदर आ जाता है, और फिर उसकी टैक्सेशन होती है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तहत। ठीक है जी। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स हैं और जो शेयर्स हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बट नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, उनके जो शेड्यूल दिए गए हैं कैपिटल गेन्स के अलग रेट दिए उसके मुताबिक हो जाएगा। तो ये दोनों में ये फर्क है कि जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है उसका थ्रू सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के मैकेनिज्म के मुताबिक टैक्स बनेगा, और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है उनके लिए कैपिटल गेन का जो हेड है उसके अंदर ही जाके ट्रीटमेंट जो है वो कर दी जाएगी। तो ये थोड़ी सी एडवांस होगी एनी हाउ। अच्छा जी, अच्छा ये अब सैलरी को ही डिस्कस कर रहे हैं। किधर क्या सैलरी लिख लेते हैं, सैलरी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर अब एक पॉइंट सिर्फ याद रखने के लिए, अगर पेपर में आ गया तो एक रेजिडेंट पर्सन है, रेजिडेंट का तो सबको पता है ना जी। अगर इंडिविजुअल के बारे में रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना हो, जो साल है जो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से, लाइक अब स्टार्ट हुआ है यहाँ पर और ये एंड होगा 30 जून 2022 को, इसके दरमियान वाला जो पीरियड है इसमें 183 डेज, ये इसके दरमियान जो है कहते हैं जी 365 डेज होते हैं एक साल के अंदर, 12 महीनों के अंदर 365 डेज, इसको 2 पे डिवाइड कर लो, आपको क्या तकरीबन ये बन जाता है 183 डेज। ठीक है, तो आधा साल, अगर कोई आधा साल यहाँ से लेकर यहाँ तक पाकिस्तान के अंदर रहता है उसे हम कहते हैं रेजिडेंट। जो रेजिडेंट होता है अगर वो कोई फॉरेन सोर्स, सुनिएगा फॉरेन सोर्स क्या होती है? पाकिस्तान से बाहर से कोई सैलरी लेता है, पाकिस्तान से बाहर से कोई सैलरी लेता है और वो पाकिस्तान से बाहर उसके ऊपर टैक्स दे देता है, तो पाकिस्तान में वो सैलरी क्या होगी? टैक्सेबल होगी, एग्जेम्प्ट होगी, दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट की जा सकती है, नॉन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो आपका आंसर और सब क्या होगा? सैलरी। याद रखें, रेजिडेंट पर्सन फॉरेन सैलरी लेता है और उस सैलरी के ऊपर फॉरेन के अंदर टैक्स दे चुका है, तो ऐसी सैलरी पाकिस्तान में क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। नोट करें, पाकिस्तान के अंदर क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। सही। अच्छा, टैक्स देने में ये भी शामिल है कि जैसे एम्प्लॉयर होता है, अभी अगर गवर्नमेंट के हम मुलाजिम थे या आप लोग में से हैं, जब एम्प्लॉयर गवर्नमेंट आपको सैलरी देती है तो अगर आपका टैक्स बनता है तो गवर्नमेंट टैक्स को विद होल्ड कर लेती है, अपने पास रख लेती है और बाकी आपको टैक्स के बगैर वाली सैलरी देती है। तो गवर्नमेंट ने टैक्स रोक लिया और एफडीआर को दे दिया राव साहब के नाम पे, तो इसको समझा जाएगा कि अगर फॉरेन में बंदा कोई सैलरी लेता है और फॉरेन वाले उसको सैलरी देते हुए टैक्स को विद होल्ड कर लेते हैं तो समझा जाएगा कि बंदे ने टैक्स पे कर दिया। ठीक है, पॉइंट समझ आ गई। चलो आगे एक और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको देता जाऊं। मैंने ना ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जब बंदा गहराई में जाके देखता है तो हम लोग बीइंग अ कंसल्टेंट बहुत सी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। 2 साल पहले मेरी ये कंडीशन थी कि मेरा एक क्लाइंट कतर चला गया और वो इंजीनियर था, पहले पाकिस्तान में एयर ब्लू का इंजीनियर था, फ्लाइट इंजीनियर्स वगैरह जो होते हैं, अच्छी सैलरी थी यहाँ पे भी, वहाँ के 2.5-3 लाख पाकिस्तान में सैलरी तो कहते बेहतर है। तो लेकिन उसको इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कतर एयरलाइन से, तो वो वहाँ चला गया।
तो वो जनवरी में शायद उसने मूव किया, तो उसकी रिटर्न मैं फाइल कर रहा था जून को। मैं बड़ा वरीड था कि यार उधर तो इसने बड़ा पैसा कमाया है, कि उधर 11-12 लाख पाकिस्तान के 13 लाख सैलरी लग गई है, तो वो सारी सैलरी का इसको टैक्स में कैलकुलेट करके पे करवाऊंगा, ये तो हमें नहीं पता होता चीज़ों का। वेयरएज के कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई रेजिडेंट पर्सन, ये नोट कीजिएगा, यहाँ पे मैं एग्जाम्प्ट करवाने लगा हूँ। अगर कोई रेजिडेंट पर्सन साल के दौरान हवाई जहाज पे बैठता है या सी के थ्रू या बॉर्डर, वैसे लैंड बॉर्डर है, जैसे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान लैंड बॉर्डर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान लैंड बॉर्डर है, पाकिस्तान ईरान के दरमियान लैंड बॉर्डर है, पाकिस्तान को छोड़ के चला जाता है और बाहर जाके या जहाज पे चढ़ के चला जाता है, दुबई, मस्कत, सऊदी अरेबिया, कहीं पे भी चला जाता है, वहां पे जाके सैलरी कमाता है रेजिडेंट, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर पाकिस्तान छोड़ के चला गया और वहां जाके सैलरी कमाई, तो उसकी सैलरी पाकिस्तान, और फिर वहीं पे रहता है साल के दौरान, जब गया फिर वापस चक्कर नहीं लगाता रहा, तो वहीं रहा, तो उस बंदे की सैलरी फॉरेन वाली एग्जेम्प्ट होगी पाकिस्तान में, उसकी सैलरी एग्जेम्प्ट होगी, चाहे वो उधर टैक्स दे या ना दे। रेजिडेंट बंदा टैक्स ईयर के दौरान उठा और उठ के चला गया और फिर बाहर ही रहा, ठीक है जी, और बाहर रह के सैलरी कमाता रहा, तो पाकिस्तान के अंदर उसकी सैलरी जो है वो एग्जेम्प्ट है, ठीक है, चाहे वो वहां टैक्स दे रहा है उस सैलरी पे या नहीं दिया उस साल की। पॉइंट बन गए, तो आपने समझ आ गया सिर्फ उसी साल पे उस साल की, अगले साल वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा, और नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम जो है वही टैक्सेबल होगी, फॉरेन तो टैक्स हो, ठीक है। या ये याद रखना, रहता है रिमेन्स अब्रॉड, फिर वो वहीं पे रहता है, ये मैं बता रहा हूँ, जाता है और फिर वहीं पे रहता है, ये नहीं है कि फिर वापस आ जाता है, यहाँ पे भी नौकरी करना शुरू कर देता है, तो फिर अगर आ गया तो फिर उसमें पहली वाली बात जो मैंने कही थी, अगर उसने उधर दिया है तो फिर सैलरी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी, नहीं दिया तो उधर भी दे देंगे। ठीक है, नहीं दिया तो फिर इधर देना पड़ेगा, सही। और अगर चला जाता है और बाहर ही रहता है तो फिर ओके। नेक्स्ट जी, ये हो गया खत्म। हाँ, पेंशन का सबको पता है, जी पेंशन का सबको पता है, ये वो ओवर कर दिया जी, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को डाउट हो। अभी जो पॉइंट जो पेपर में आने वाले हैं उनको मैं डिस्कस करता जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एम्प्लॉय शेयर स्कीम इज ओवर, देन आई टोल्ड यू अबाउट द फॉरेन सैलरी ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन who earned while remaining in Pakistan. So if he had paid the tax on foreign salary, then that salary is exempt in Pakistan. And during a year, if a resident person leaves the Pakistan and remains outside the Pakistan and earns a salary over there, then that foreign salary is not taxable in Pakistan. Even if he has not paid the tax on foreign salary. So I believe things are clear. ये शीट लगवानी पड़नी है, उसके जो घर में लगवाया ना उसके ऊपर भी ये शाइन वाली लगवानी पड़ेगी। अच्छा, आगे बात करते हैं, और आगे पेंशन, तो पेंशन बताते जाओ जी। सर आगे पेंशन तो नहीं। मैं बस छोड़ दो ना, अच्छा ठीक पेंशन क्या है, टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? अगर पेंशन दो हो, कंडीशनल है सर। अगर पेंशन दो हो तो एक एग्जाम्प्ट है, बाहर एग्जाम्प्ट है। हाँ, हायर एग्जेम्प्ट है। पब्लिक और प्राइवेट का भी इसमें होता है। अच्छा, आप बताओ कि अगर बंदे की 60 ईयर्स एज हो गई है तो उसकी दो पेंशन ले रहा है, फिर कितनी एग्जाम्प्ट है? दोनों ही दो। सारी एग्जाम्प्ट।
चाहे वो 50 पेंशन ले रहा है, ऐसा होगा कोई भी ऐसा। चलो, अगर 60 साल उम्र हो गई है, ठीक है, तो वो फिर क्या होगा? एग्जाम्पल अभी 60 साल उम्र कब हो गई है ये भी याद रखना। 60 साल जो पहला दिन है टैक्स ईयर का, उससे पहले उसकी 60 साल हो चुकी है। अगर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर हुई है ना, तो वो उससे अगले साल 60 साल का काउंट करेंगे, उस साल नहीं करेंगे। ये एक ऐसी पॉइंट बता दिया आपको, ये प्रैक्टिकल जो बातें हैं। चलो, पेंशन किसे हैं? पेंशन कहते किसे हैं? जो हर महीने आपको एक खास अमाउंट अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर की तरफ से मिलती है, उसे पेंशन कहते हैं। फिर कहते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। जी राव साहब, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या होता है? सरकारी मुलाजम जब आप इंस्पेक्टर बनेंगे, अल्लाह करे फिर इंस्पेक्टर बन के आप कमिश्नर बन के रिटायर हो, जब वो रिटायर होने लगेंगे उसको आपको मिलेगा कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। कम्यूट मिला है कहते हैं ऑफ पेंशन। ये क्या होता है? ये आपकी जो टोटल पेंशन होती है उसकी कुछ परसेंटेज होती है, वो आपको कम्यूट के तौर पर मिल जाती है। टोटल पेंशन जो होती है ना, उसको कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करके उसका अराउंड 65% आपको दे देते हैं और 35% आपकी पेंशन आती है। पेंशन आती है। यहाँ आई थिंक 35% दे देते हैं और 65% जो है वो आपकी मंथली पेंशन आती है ना। तो इसी तरह है ये, लेकिन कुछ लोगों के पास ऑप्शन मौजूद होता है वो 100% ही ले जाते हैं। साल में देते हैं। ये वाला कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में अगर कोई रिसोर्सफुल हो तो निकलवा भी सकता है कि मुझे पेंशन ही चाहिए, मुझे सारे इकट्ठे देते, लेकिन कभी गलती ना करना। कोई 60 साल का बाबा सारे पैसे लेके चला गया, जैसे ही घर गया बच्चों ने तो छीन लेने हैं, बच्चों ने छीन लिए तो फिर बाबा वेला, ठीक है जी। और जब बाबा वेला हो गया तो उसको किसने लिफ्ट करवानी है? अब अगर बाबे की 50,000 या 55,000 या 60,000 इस दौर में आ रही है तो सारे अगर रात को बात सुन लेते हैं बाबा जी से, और जी अब्बा जी ठीक ठाक, वो सही से ठीक है, वो पता ही है हम कि बाबा जी को पीछे बिठा के जाके 60,000 रुपया निकलवाना है मैंने, ठीक है, तो आपका वो काम बना रहेगा। कभी भी बच्चों की बातों में आके तो वो सारी की सारी ना निकलवा देना। ये भी एक एडवाइस है कि नौकरी में आके तो सारे का सारा रूट ना निकलवा देना कि ठीक है सारा दे दें, तो अगर सारा दे दिया तो आपके हाथ कट गए, तो फिर औलाद आजकल की ऐसी है। चले, तो सर ये कम्यूटेशन अंदाजे से मिलती है? ये अंदाजा तो नहीं होता है कुछ। सारा ये लॉस है फिर इसका कम्यूटेशन हैरानी की जैसे के हिसाब से कैलकुलेशन होती है 100% जितनी भी आपकी बनी, जो भी वो कैलकुलेशन का फार्मूला है, वो कुछ स्पेशल नंबर ऑफ ईयर सर्विस को और फिर कुछ चीज़ों को मल्टीप्लाई करके तो बनाते हैं, ऐसे ही है। सर जैसे हर साल जो अगर बढ़ती है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हर साल जो बढ़ती है, गवर्नमेंट कभी 15% कभी 10%। हाँ, तो वो तो बेसिक पे बढ़ती है ना हर एम्प्लॉय की। नहीं तो अगर 100% कोई ले लेगा, अच्छा तब तक ले, तो फिर वो खत्म हो गया, वो तो वैसे ही फौत होकर चला गया ना गवर्नमेंट के कागजों में। तो वो नुकसान ही में से कुछ लोगों को कुछ शौकीन होते हैं कि वो कहते हैं नहीं आने तो जो है जाके मोचे करते हैं, 4 दिन ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इसलिए तो लोग कुछ सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, उनको कुछ उन्होंने ना कहीं और भी इन्वेस्टमेंट्स की होती है, उनको आ रहे कहते हैं यार ये भी क्या, इसको भी खत्म करेंगे, और मुर्गी खाना एक और बना लेते हैं, ठीक है, पोल्ट्री फार्म और बना लेते हैं, ठीक है। जुआ ही है फिर तो ये। चले वापस आते हैं, मैं कुछ और बताने लगा था। अच्छा यार, कुछ ग्रेजुएटी होती है। अभी ग्रेजुएटी कैसे निकलती है, इसको भी हमें मेरे ख्याल से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं कि ग्रेजुएटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो होता ही है कि लास्ट सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर सर्विस, इस तरह का भी ग्रेजुएटी बन जाती है। जब आप जा रहे होते हैं उस वक्त आपको आपका अदारा, आपका एम्प्लॉयर आपको दे देता है। अब जो देने वाला है वो कौन है, उसके हिसाब से उसकी टैक्सेबिलिटी होगी। अगर तो आप सरकार के मुलाजिम हैं और आपको ग्रेजुएटी मिलती है तो टैक्सेबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी? जी, सरकार के मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम जब ग्रेजुएटी मिलती है उसे, वो टैक्सेबल होती है या एग्जेम्प्ट होती है? एग्जाम होती है। नोट करते जाए।
अच्छा, फिर ग्रेजुएटी के फंड जब एम्प्लॉयर बना रहा होता है वो आगे कमिश्नर से अप्रूवल ले लेता है। अगर कमिश्नर से अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड है, वहाँ से पैसे मिल रहे हैं, तो क्या वो टैक्सेबल होगी, एग्जेम्प्ट होगी? अगर टैक्सेबल होगी तो कितने परसेंट टैक्सेबल होगी और कितनी एग्जेम्प्ट होगी? तो सरकारी ग्रेजुएटी और कमिश्नर से अप्रूव ग्रेजुएटी पेपर में आ गया तो फौरन कह देना एग्जेम्प्ट। सरकारी ग्रेजुएटी और कमिश्नर से अप्रूव्ड सैफ, सरकार की तरफ से मिलने वाली ग्रेजुएटी और कमिश्नर की तरफ से जो अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड है उससे मिलने वाली ग्रेजुएटी क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। आगे ग्रेजुएटी स्कीम जो है अगर वो बोर्ड से अप्रूव की गई है, बोर्ड से अगर अप्रूव की गई है तो अब ये याद रखना पड़ेगा कि अगर बोर्ड से अप्रूव है ग्रेजुएटी, अगर बोर्ड से अप्रूव्ड है तो अप टू 3 लाख एग्जेम्प्ट है, और अगर उससे एडिशनल होगी तो आपकी सैलरी का हिस्सा बन जाएगी। सही। और आगे आ गया और आगे है कि अनअप्रूव्ड, ऐसी ग्रेजुएटी जो कि अप्रूव्ड ही नहीं, उसका आप लोग क्या करोगे जी? वो भी टैक्स होगा, टैक्सेबल। उसका कह रहा है 50% ऑफ रिसीव्ड अमाउंट, ठीक है जी, या 75,000। इन दोनों में से जो कम होगा, इन दोनों में से जो कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बाकी सारी की सारी राशिद साहब क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। राशिद नाम नहीं है? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि सर ये पेनाल्टी और ऑफेंसेस वगैरह से बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा था। अच्छा अच्छा, तो बस ये ग्रेजुएटी हमने 4 तरीकों से कर ली। हमने कहा कि ग्रेजुएटी अगर गवर्नमेंट से मिल रही है आंखें बंद करके एग्जाम्प्ट, ग्रेजुएटी मिल रही है किसी ऐसे फंड से जो कि कमिश्नर से अप्रूव्ड है आंखें बंद करके एग्जाम्प्ट, ग्रेजुएटी अगर ऐसे फंड से मिल रही है जो कि बोर्ड से अप्रूव है तो फिर 3 लाख तक एग्जाम्प्ट, ठीक है। और अगर ग्रेजुएटी अनअप्रूव्ड फंड से मिल रही है तो 50% और 75, तो दोनों में से जो कम है उतनी एग्जाम्प्ट है। तो अब देखो कि ऐसा जिनका बच्चा IIR एस्पायरेंट्स जो है इतने परसेंटेजेस इतने कम ज्यादा किस तरह याद करेगा? तो इसको याद करने के लिए एक तो आप बादामों की गोलियां ले लें और दूसरा अक्षर तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कुर्बानी लेके आए, शादी है वो नहीं है। ठीक है जी। तो अच्छा साहब आपका बैच कौन सा था? 3rd बैच, और अभी आप क्रैश बैच तक पहुंच गए। उसके बाद तीसरा आया, चौथा आया, तीसरा चलो आपका था, चौथा, 5वां और अब क्रैश। तो आप फीस उसी पे चल रहे हैं। तो फिर राव साहब आपका दूसरा, अभी दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और अभी क्रैश, ठीक है जी। आपका राजू साहब तीसरा, एक और तीसरे वाला बैठा हुआ है। तो और ऑनलाइन में भी कुछ ऐसे हैं, तो उनसे तो मैंने फीस ले ली है। हसन का भी था, उसने भी फीस दे दी है। अभी राव साहब की रह गई है, आपकी रह गई है कुर्बानियाँ, ठीक है, और राशिद साहब से कुछ कर लेते हैं। चलो यार आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा ना वो भी हो जाना चाहिए ताकि रिफ्रेश भी हो जाए, पढ़ पढ़ के परसेंटेजेस बता बता के जो है ना वो आउट हो जाता है बंदा। आगे चलो। अच्छा यार मेडिकल का कुछ बात हो रही थी। मेडिकल क्या है? मरात है, परकुजिट है, आपको मिल जाता है। अब अगर
आपको मैंने ईश्वर साहब कुछ रिक्वेस्ट की थी, वो मार्कर और इंक वाली, वो आ गया। मौसम खराब मौसम खराब हो रही है, उसके तो मैंने पैसे भी दिए थे, वो तो यार ला दो। हाँ यार वो ले आओ। मैंने पूछा कि यहाँ कम में जगह था, लिखना है तो मुश्किल हो रहा है, पानी के तो जब आएगी फिर पैसे देंगे यार, ऐसे ना करो यार। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है या आप मेडिकल का खर्चा करते हैं तो वो रीइंबर्स हो जाता है, और ये मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है और रीइंबर्समेंट हो रही है एज पर जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स है। आप बीमार होते हैं तो आपका एम्प्लॉयर कहता है कि डॉक्टर हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ से जाके इलाज करवा लो, कि हमारा उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, आपको वो फ़ायदा मिला। या आप बीमार होते हैं, आप खुद किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, वहाँ पे दवाई लेके आते हैं, बिल बनाते हैं और कहते हैं एम्प्लॉयर साहब ये मुझे बिल तो पे कर दें, क्योंकि मैं बीमार हुआ था, मैंने ट्रीटमेंट करवाई है, ये उसके प्रूफ है। अब बताओ कि तुम्हें मेडिकल फैसिलिटी एक फ़ायदा मिला या नहीं मिला? एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिला, या आपका जो मेडिकल का खर्चा वो आपने वापस ले लिया, वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से मिला, और वो एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स के अंदर लिखा हुआ था, तो बताओ क्या ये एग्जेम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा, या आपकी सैलरी में शामिल होगा या नहीं होगा? एग्जेम्प्ट है। इतनी कॉन्फिडेंस से कह रहा, मेरा भी दिल कर रहा है कह दूं नहीं शामिल। अच्छा चलो आगे, नेक्स्ट। आगे जी, अगर यही मेडिकल फैसिलिटी या रीइंबर्समेंट होती है लेकिन नॉट एज पर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स के मुताबिक नहीं है, अब बताओ ये एग्जाम्प्ट है या टैक्सेबल है? फिर तो हाँ टैक्स लगेगा सैलरी में। हाँ, तो ये सारे का सारा जो भी फायदा मिला आपको, आपको मेडिकल की फैसिलिटी मिली है, रीइंबर्समेंट एज पर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स हुआ, तो फिर ये सारे का सारा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। इसकी कोई लिमिट वगैरह है सर? चलने दो ना, अभी ये सारा मुकम्मल हो जाए फिर हम करते हैं, ठीक है। आगे आ गया जी मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस आपको कहता है जी कि आपकी सैलरी में इतना अलाउंस आ जाया करेगा, तो मेडिकल के लिए अलाउंस लग जाता है, जो भी आपकी बेसिक सैलरी है 10%, उसका 10%। अच्छा, बेसिक है या सैलरी है ये मुझे देखना पड़ेगा। बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी का 10% बेसिक नहीं होगा। बेसिक, ठीक है जी। तो आपकी बेसिक सैलरी का 10% एग्जाम्प्ट है। मिसाल के तौर पर आपकी सैलरी है बेसिक 1 लाख, आपको मिल रहा है जी, वो दे देता है लेट्स सपोज के 1,50,000, क्या जी? मेडिकल अलाउंस 12 महीनों में, सही। आपकी सैलरी ये है, 10% कितना हो गया? 1 लाख, इतना ही होगा ना? सिर्फ 10,000 होगा ना, 1 लाख सैलरी। हाँ, तो अच्छा ठीक है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 1,20,000, 1,20,000 तक एग्जेम्प्ट है, 1,50,000 मिला, इन दोनों का फर्क निकाला जाए, 30,000 जो है वो आपको जो मेडिकल अलाउंस है वो एग्जेम्पशन से ज्यादा मिल गया, तो जो 30,000 है वो आपकी सैलरी के अंदर शामिल हो जाएगा, और आपकी सैलरी जिस पे टैक्स लगना है वो सैलरी बढ़ जाएगी, और जिस अमाउंट पे टैक्स लगना है अगर वो बढ़ जाए, टैक्स तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया क्लियर जी। आगे कंडीशन आती है, अच्छा, कुछ एम्प्लॉय बड़े ही अच्छे होते हैं, एम्प्लॉय तो बेचारे सारे ही अच्छे होते हैं, कुछ एम्प्लॉयर अच्छे होते हैं, वो कहते हैं
मेडिकल अलाउंस भी ले लो, तुम्हें मैं मेडिकल फैसिलिटी भी साथ ही दे देता हूँ, और अगर जो मैंने फैसिलिटी दी हुई है वहां से इलाज नहीं करवाते, कहीं और से करवा देते हो, तो मैं तुम्हें रीइंबर्स कर दूंगा जो तुम्हारा खर्चा होगा। अब बताओ यहाँ पे टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है? सर ये भी उसका होता भी रोक एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन। अच्छा जी, वो कहते हैं कि एज पर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, ये सारा कुछ जो मिल रहा है एज पर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स के बिल्कुल मुताबिक है। अब बताओ कि मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही है और रीइंबर्समेंट भी हो रही है, सर फैसिलिटी एग्जाम्ड है। तो यहाँ पे ये और ये एग्जाम्प्ट है, मेडिकल अलाउंस सारे का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। लाइक अपनी ऊपर वाली एग्जांपल को यार कंसीडर कर लेते हैं कि ऊपर वाली एग्जांपल में 1,50,000 मेडिकल अलाउंस भी दे रहा है, साथ में मेडिकल फैसिलिटी भी, चले जाना डॉक्टर हॉस्पिटल वो तुम्हें देखेंगे, और साथ में इस तरह करना कि अगर तुम किसी और के पास जाते हो तो खर्चा करते हो मेडिकल का, तो रीइंबर्समेंट कर दूंगा। तो फिर ये रीइंबर्समेंट जो मेडिकल फैसिलिटी है ये तो साइड पे रख दो, और जो मेडिकल अलाउंस है वो सारे का सारा तो यहाँ सारे के सारे यहाँ पे सारे का हाँ, सारा। मेडिकल अलाउंस। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ भी तो हमने कहा था ना कि एज पर टर्म्स, फिर अगला कहता है कि मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही है, रीइंबर्समेंट मेडिकल की भी हो रही है, लेकिन नॉट एज पर टर्म्स। फिर सारा ही जो होगा टैक्स होगा, फिर सारा ही टैक्स। नॉट एज पर टर्म्स, तो यहाँ पे बाकी सारा वो टैक्सेबल कर रहा है। वो कह रहा है मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट, बाकी जो मेडिकल फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट ये फुली हो जाएगा क्या, टैक्सेबल। हाँ जी बना लो यार, कोई नहीं है ऐसी करंट लगा है, बना ले यार, नहीं बना आप तो गुड़ भी लेके आए थे, बना लो बना लो, कोई मसला नहीं, बनाओ सामने, कोई मसला नहीं। ये इम्पोर्टेंट है यार, देखो कि ये बना ले आप। अच्छा देखिए, याद रखना, इट्स नॉट एन इजी थिंग, इट्स नॉट एन इजी टास्क, इसको आप लगातार पढ़ेंगे तो फिर याद रहेगा कि यार ये देखो कंडीशन ही कितनी बन गई है, मेडिकल फैसिलिटी और रिइंबर्समेंट एम्प्लॉयमेंट के बराबर है एग्जाम्प्ट, अगर मेडिकल फैसिलिटी रिइंबर्समेंट एम्प्लॉयमेंट की कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो टैक्सेबल, फिर मेडिकल अलाउंस 10%। अभी देखो ये भी याद रखना जरूरी है कि किसका, बेसिक सैलरी, ठीक है। आगे फिर मेडिकल अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटी और जो मेडिकल रिइंबर्समेंट है वो एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है, तो फिर ये देख लो और आगे देख लो, और 10%, ये सारा जो है चार्ट जो है इसको आपने याद रखना है। तो आई थिंक कि हमें आज एंड कर देना चाहिए, और अगर आप ये कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। शाह साहब आप तो वैसे ADIB वाली भी क्लास लेते हैं, तो आपका तो काम लंबा है, 5-6 बजे लेकिन आप यार अच्छा सा कैमरा लेके आओ। हाँ कि बेहतरीन सा कैमरा, जिस तरह ये हमारा ये रोजी वाला है ना, इसी तरह का जो है वो रिजल्ट दे, ठीक है। और लेट्स एंड द क्लास, ठीक है।